लवली। कहानियां कहानियां हम सबकी जिंदगी में बहुत जरूरी होती हैं। एक बार सोच के देखिए, स्टोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। वी आर नथिंग बट स्टोरीज। हम सब एक कहानी है। बचपन से वो सारी कहानियां जो माँ बाप ने आपको सुना दी, कुछ कहानियां जो आपने टीचर्स गुरुओं से सुन ली, कुछ कहानियां जो दोस्तों के साथ खुद ब खुद बना ली। आप ये जो शख्स मेरे सामने बैठा है, ये सारी उन कहानियों का ही रीजन है। Each and every one of us is basically nothing but an accumulation of all those stories we've been listening since we were child, right? Like every single one of them that made you who you are. Even if one of those stories were not there, you would not be the same person you are right now. Yes or no? That's exactly. So stories are that important. What we do is, why stories are important, कहानियां इतनी क्यों जरूरी होती है, एक छोटी सी कहानी से सुनाता हूं, है ना? कहानी की तरफ चले उसके पहले बता सकते हो ये म्यूजिक किसी ने सुना है कभी? Any millennials in the house apart from those two kids? आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है म्यूजिक क्या है? For the rest of us, I think कहानियों की शुरुआत इसी म्यूजिक से होती थी बचपन में। आधे घंटे के लिए वो चड्डी पहन के स्वामी आता था। You remember? चड्डी पहन के स्वामी आता था, just like that half an hour आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाकर भाग जाता था। स्वामी कहानियां सुनाकर तो भाग जाता था, वो कहानियां आपको याद नहीं है, पर उन कहानियों के पीछे का लेसन, वो सच, वो सीख कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बस चुकी है। मालगुडी डेज, करेक्ट। You can never be wrong, man. 100% right. आपकी आंखों में वो चमक है that says I know this music. So मालगुडी डेज। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी की तरफ लेकर चलता हूँ। I'll try and translate the story in English here and there. If you guys miss it, let's hope not. All right. So एक बहुत पहले की बात है, गांव में दो बहनें रहती थी। दोनों बहनें बला की खूबसूरत। There were two sisters in a village and both of them were very beautiful, very beautiful. जैसे गांव वालों को नाज था कि ये बहनें हमारे यहाँ रहती हैं। There were two sisters. One was सत्य, पहली का नाम था सत्य और दूसरी का नाम था कहानी। दो बहनें, एक का नाम सत्य और दूसरी का नाम with me, the other two. So there were two sisters. One of them was the truth, the other one was the story. These two sisters were living in that village. All right. हुआ कुछ यूं कि एक दिन उस गांव में एक फकीर आया। फकीर समझते हैं? बाबा, ठीक है, we'll get there. दोनों बहनों ने उस फकीर की खातिरदारी, सेवा इतने अच्छे से की कि जाते जाते तोहफे में वो फकीर उन्हें एक आईना दे गया। आईना पहली दफा था जब दोनों बहनें आईना देख रही थी। मेरा फकीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Sage. Saint? No. A saint. What do you call a fakir in English? A man of spiritual value. Fine, a man of spiritual value. Bravo, ladies and gentlemen, for Mega. But who lives by begging. By begging, basically. His means of living is begging. Correct. His means of living is completely begging. He can't earn money because he just have to ask for food, and whatever he gets in return, he can only survive on that and just keep on moving from one city to another. We call them fakirs. Like they considered to be much holier than the priests themselves, right? Because they are the ones who actually is looking for the God, not just sitting in any temple and just reading about God, right? They're actually out there finding God. That's why fakirs are more important. So in that village, that fakir came, and both the sisters actually made him happy somehow or the other. And before leaving, he gave them a mirror. There was the first time when both the sisters were actually looking into a mirror. First time ever. Hypothetical, of course. Just go with it. It's a story, all right. सबसे पहली बारी सत्य की थी। सत्य ने आईना उठाया, अपने आप को आईने में देखा और कहने लगी कि अरे, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो और कोई हो ही नहीं सकता। गुरूर कर बैठी, ऐंठन में आ गई। अगली बारी कहानी की थी। कहानी ने आईना उठाया, अपने आप को आईने में देखा और कहने लगी नहीं, ज्यादा खूबसूरत मैं हूं। दोनों बहनों में झगड़ा सा हो गया। अब ये बात तय कैसे हो कि ज्यादा खूबसूरत? So both the sisters नहीं चलेगा। I think it's okay for you guys, ना? If I translate it, I'm enjoying it actually. You know, it's a challenge for me also. Let's see. We get deeper in the story. With me so far, right? You guys as well? So that man of spiritual value came into the village, and before going, he left a mirror.
first the truth. The first sister saw herself in the mirror, and she was like, "Damn, I'm beautiful. Nobody in the world can be more beautiful than I am." Then it was the story's turn. Story took the mirror. She's like, "No, I'm more beautiful." And suddenly, then there's a feud between the both. And now, how will it be like resolved? कैसे खत्म होगा? तो दोनों बहनों में लगी एक शर्त. There was a bet that both the sisters, दोनों बहनें एक एक करके गांव के बीचों बीच चौक तक पैदल चलकर जाएंगे, और जिसके पैदल चलने पर ज्यादा गांव वाले तालियां बजाएंगे, वाहवाही करेंगे, सीटियां मारेंगे, वो बहन जीत जाएगी. Alright, the bet was both the sisters are gonna take one by one take a ramp walk towards the middle of the village, and if the number of people will be clapping for them, just like doing woo wow, that sister will win. पहली बारी सत्य की थी, बड़े गुरूर में ठंड में कि मेरा हुस्न देखकर तो लोग बावले बावले हो जाएंगे. सत्य चल पड़ी गांव की ओर, और जैसे ही उसने पहला कदम गांव में रखा, हुआ बिल्कुल उल्टा. लोगों ने सत्य को देखा और डर गए, डरकर अपने अपने घरों के अंदर भाग गए. जहां जहां से सत्य गुजरती, लोग उसे देखते, डर जाते, घरों के अंदर भाग जाते, दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियां बंद कर लेते, चटकनियां भी लगा लेते. सत्य परेशान, ऐसे तो मैं हार जाऊंगी. चलते चलते सत्य पहुंची गांव के बीचों बीच चौक में, तो जैसे पूरा गांव खाली सा हो चुका था. तब सत्य ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए एक छोटी सी तरकीब लगाई. वहीं चौक के बीचों बीच खड़े हुए सत्य ने अपने सारे कपड़े खोल दिए, नग्न अवस्था में खड़ी हो गई, ये सोचकर कि अब तो लोग आ ही जाएंगे. So the first turn was the truth turn. The first sister, she took a walk thinking that everybody will just like go gala just by looking at her, but the result was exactly the opposite. The moment the villagers saw truth alone, they were scared of her. They were running around, they were going into their houses, shutting their doors and windows and everything. Truth was very disappointed. While reaching in the middle of the village, the last technique she thought of, the last strategy, just to attract people towards her, she removed all her clothes and just stood there completely naked, in the belief that people will come now. But apparently, again, the result was completely opposite. लोगों ने देखा और डरकर अपने अपने घरों में भाग गए. सत्य वहां खड़ी खड़ी रोने लगी कि मैं हार गई. She thought she lost the bet already. There was nobody clapping for her or wooing anybody around. कहानी घर में बैठी बैठी ये सब कुछ देख रही. तो अब कहानी ने एक तरकीब लगाई. कहानी ने श्रृंगार करना शुरू किया. श्रृंगार समझते? 3, 2, 1 कहो हाँ. श्रृंगार समझते हो तो कहो हाँ. So कहानी ने श्रृंगार करना शुरू किया. The other sister was watching all of this, suddenly started doing makeup to herself. Like she started getting ready, right? सबसे पहले उसने लहंगा गिनगाम का पहना, सर पर एक सुर्ख चुनर ओढ़ी, माथे पर बिंदिया, आंखों में काजल, गालों पे लाली, पैरों में पायल, और पैरों की 10 उंगलियों में 10 अनवट बिछिया पहनकर तैयार हो गई और कहने लगी कि अब मेरी बारी. फिर जैसे ही कहानी ने पहला कदम गांव में रखा, उसके पायल की आवाज आई, और इस छन्न के साथ साथ जो घर की दरवाजे, खिड़कियां, चटकनियां बंद थी, वो खुलने की आवाजें आने लगी. लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आने लगे. जहां जहां से कहानी गुजरती, उसके पीछे पीछे चलने लगे, नाचने लगे, गाने लगे. और फिर मूवी का नाम पता है किसी को? यस बोलने के बाद हाँ, ये भैया, तमाशा. Alright, so sorry, translation time. So Kahani was looking at all that, and she started getting ready. She started doing makeup a lot. And the moment she got into the village, as soon as she put up the first foot down, you heard that the sound, right? It was the anklet. So as soon as that sound came on, I'll take it. As soon as that sound came on, everybody started coming out of their homes. All right, everybody started following her, wooing her, clapping for her, like she's about to win. चलते चलते कहानी वहां पहुंची जहां सत्य अकेली खड़ी रो रही थी. With me so far? मिस तो नहीं हो रहा है हिंदी इंग्लिश? नहीं ना? पक्का? It's very hi. All right, so कहानी चल पड़ी थी. कहानी चलते चलते वहां पहुंची जहां बीच में सत्य खड़ी रो रही थी. सबसे पहले उसने सत्य के कपड़े उठाए, सत्य को दिए, और उससे कहा कि सत्य, आज एक बात की गांठ बांध लो.
कि लोगों को सच देखना बिल्कुल पसंद नहीं, और नंगा सच तो बिल्कुल भी नहीं। What she did was, she walked up to the girl who was standing there naked in the middle of the village. She picked her clothes up, gave it to her, and told her that, please listen to me one thing very carefully, that nobody likes to see the truth directly. Nobody likes to see the naked truth in the first place. फिर कहानी ने सत्य का हाथ पकड़ा और लेकर पूरा गांव घूमी। गांव का एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, यहाँ तक कि हर जानवर भी उनके पीछे नाच रहे थे, गा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे। तब कहानी ने जो सत्य से कहा वो बात बताने के लिए ही ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुनोगे? जोर से कहो हाँ। तब कहानी ने सत्य से कहा कि सत्य, आज के बाद जब भी लोगों को सच दिखाने की बारी आएगी, आज के बाद जब भी लोगों को सच दिखाने की बारी आएगी, उसे कहानी की खूबसूरती का सहारा लेना ही होगा। बिना कहानी के श्रृंगार के, बिना कहानी की खूबसूरती के किसी को सच देखना पसंद नहीं। मजे की बात यह है कि आप लोगों को ये बात बताने के लिए भी मुझे कहानी का सहारा लेना पड़ा। So, ट्रांसलेशन मैं गाना सुनाना चाहता, सुना है? कहानी में हम पम पररररम। अगर आप लोगों ने गाना पहले नहीं सुना है, it's one of the finest written songs in the country right now. It's all about everybody's life. Please go through this song. There you are. I'll come to you guys. It's 2 minutes. जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी, आधी भर ले तो आधी बह जाने दे, जाने दे। This line, be with me. हम समंदर का एक कतरा है, या समंदर है हम, पम पररररम। So this was the story. Done? Now clap. Wow, yeah. So sweet. Come on. So he shouldn't have clapped. You don't know the end of the story. Nevertheless, so what happened was, so story told the truth that nobody likes to see the truth with bare eyes, and nobody liked to see the naked truth in the first place. Then the story took truth's hand, and they both roamed the entire village, and automatically the entire village was right behind them. They were like celebrating, like there was the Diwali happening, there was a festival happening. And then story told to truth that one particular thing, because of which I'm narrating this story to you guys. All right, so be very careful what I'm about to tell you. Story said to the truth that whenever we have to show the world what the real truth is, it will have to use shringar. Makeup is not the right word. has to beautify. Whenever we need to show the truth to the real world, it needs the beauty of a story. Without the beautification of a story, nobody likes to see the truth directly. Now the irony is, just to tell you guys this much, I still have to use a story, right? Like how much stories are important to all of us. So you're lost in translation apparently. Now you can clap. Yeah. Wow. That was a very tough job I just did. Huh? Never done that before. Love it. And no point in telling you guys my English is so bad. You did well, you did well. So now, the show which we are, oh wow, बच्चे भाग गए. So I think कितने लोग हैं जो साहिल भुवन मेगा के पोस्टर देख करके कुछ सूफी का हो रहा है और आप तक देखने आ गए हो? हैं, see? Yeah, friends, we come here daily. No, today they have come for the show. Yeah. Mama. Do you guys know what Sufi is? Have you heard this word Sufi? Yeah. बाकी तो हम श्योर हम सब ने तो सुना ही है. Like when it comes to Sufi music, चलो ऐसे करते हैं. जब आप शब्द सुनते हो सूफी, सबसे पहले दिमाग में क्या क्या आता है? Tell me. Divinity. रूमी, एक सूफी सेंट का नाम आता है. सूफी सॉन्ग्स बेसिकली जिन्हें हम कवालियां कहते हैं. आप सभी कवालियां सुनते हैं? सुनी है ना एटलीस्ट? वही होती है कवालियां, सूफी. लेट मी पुट इट दिस वे. कहा गया कि कवालियां जब भी गाई जाएं तो वहां पर 3 सिचुएशंस पूरी होनी चाहिए. नंबर 1, कवाली जब गाई जा रही हो तो गाए जाने वाले गले सिर्फ सूफियों के होने चाहिए.
कवालियां जहां सुनी जा रही हैं वहां सुनने वाले कान सिर्फ सूफियों के होने चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हाय, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि जब कव्वालियां गाई जा रही हों तब वहां बैठने वाला कोई भी जो शख्स है उसे और कोई काम नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से वो वही होना चाहिए, दिमाग कहीं और नहीं होना चाहिए। जब ये तीनों सिचुएशंस पूरी होती हैं तब जो गाई जाती हैं उन्हें कव्वालियां कहा जाता है। कव्वालियां और कुछ नहीं, अगर हमारी तरीके से बात करूं तो भजन है। आप भगवान के प्रशंसा में उनकी उम्मीदें करते हुए कुछ जो भजन गाते हैं उन्हें इस्लाम में कवालीस कहा जाता है। एज सिंपल एज दैट। विथ मी सोफा। कहा गया सूफी शब्द को अगर समझना है, अगर आपको सूफी होना है तो सिर्फ दो चीजें चाहिए आपको और कुछ भी नहीं। एक तवक्कुल, उर्दू का एक शब्द है तवक्कुल, बोल के देखो, TAWAKKUL, तवक्कुल। जोर से बोलो, जय माता दी। कैन यू गाइस प्रोनाउंस तवक्कुल? TAWAKKUL। Close enough. 8 out of 10. See the timing? Azan goes on. तवक्कुल, तवक्कुल शब्द का मतलब बहुत सिंपल सा और बहुत आसान सा है और कुछ नहीं। सरेंडर, अपने आप को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। बात सोचकर देखो, असल में हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। सोचकर देखो, सब कुछ हो ही रहा है। वी आर जस्ट लाइक देख ही रहे हैं हम बैठ के, बस आपको लग रहा है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कि आपके हाथों से कुछ भी हो रहा है। असल में तो सब अपने आप ही हो रहा है। ये बात जब समझ जाओगे बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। पर तवक्कुल जरूरी है। फर्स्ट तवक्कुल, सरेंडर। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर तवक्कुल, तवक्कुल मींस सरेंडर। व्हेन यू सरेंडर योरसेल्फ कंप्लीटली, that wherever he or she, God, takes me, I'll go directly. The second, sabr, patience. After surrendering yourself, you got to have patience, and then you are a Sufi right there and then. सूफियों को बहुत सा, the second is sabr, patience. One, you should have surrender yourself completely, and after that, you just be patient. You're spiritual, you're right there, you're very close to God. That's what Sufism tells us. All right. सूफी को कुछ लोग सूफ, वुल जिसे ऊन कहते थे ना, उससे जोड़ते हैं। जो लोग ऊनी कपड़े पहनकर घुमा करते थे वो सूफी कहलाते थे। कुछ लोग सूफियों को चबूतरों के हवालों से समझाते हैं। जितना मैं समझ पाया, सूफी का मतलब है साफा, सफाई। किसकी सफाई? मन की सफाई। रूह, अपने आप को अंदर से साफ कर देने को ही सूफी होना कहते हैं और कुछ भी नहीं। व्हाट सूफी वर्ड implies is just Cleanse your soul. cleanse yourself, cleanse your soul. When you're completely clean inside out, then you're a Sufi. You're very close to him right there, right? Like a small child. When you see a small innocent child, हम उसे क्यों कहते हैं खुदा का बच्चे? बच्चे भगवान का रूप होते हैं। We say, right? Why do we say that? Because जितना आप फ्रेश रहते हो, जितना आप नए नए रहते हो, ये गंदगी लगी नहीं होती है आपको, साफ रहती है रूह, उतना करीब रहते हो आप उसके, फिर धीरे धीरे हम खराब होना शुरू हो जाते हैं। क्या है? कवालियां जो आपने कही सबसे पहले, राइट? तो अब कहानियों के जरिए मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसी जर्नी पे, ये बताने की असल में कवालियां आई कहां से, कब कवालियां लिखी गई, क्यों लिखी गई और किसके प्यार में लिखी गई। इस पूरे शो का असल में जो नाम मैंने रखा है वो है इश्क सूफियाना। बोलकर देखो, सूफी जो इश्क होता है ना, बुला रहे हैं। हम बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सूफी इश्क क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ यही सूफी इश्क नहीं कि आपको भगवान या प्यार कर लो और इश्क हो जाता है, सूफी हो गया अपना ही। बहुत अलग अलग तरीके के प्यार होते हैं। आगे बढ़ूं उसके पहले सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं। जिस शख्स का मैं नाम लेने जा रहा हूं, आप में से कितने लोगों ने इनका नाम सुना है? अमीर खुसरो। तो सुना चुका हूं। खुसरो, खुसरो, एनीबडी एल्स? सबने सुना है? नाम सुना है आपने? बहुत बढ़िया। बाकी लोग विथ मी? अमीर खुसरो। Do you guys know this name, Amir Khusro? So he lived in India in 12th century, all right, approximately 900 years ago from now. He was the one who wrote the first qawwali. He was the one who wrote the first ghazal. So ऐसे हिंदी में बताने दो, एक इम्पैक्ट वाला मोमेंट है। रईसों में रईस, दरबारियों में दरबारी, संगीतकारों में संगीतकार और उसके बावजूद आम आदमियों में सबसे अव्वल आम आदमी अमीर खुसरो। अगर आपको संगीत से थोड़ी सी भी मोहब्बत है तो आपको खुसरो साहब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कैसे? दुनिया की पहली कव्वाली लिखने वाले
अमीर खुश रहो, दुनिया की पहली गजल लिखने वाले, अमीर खुश रहो, सतार, 7 तार का साज जिसे आज हम सितार कहते हैं, बनाने वाले, अमीर खुश रहो, ढोलक बनाने वाले, अमीर खुश रहो, ढोलक को काट कर तबला बनाने वाले, अमीर खुश रहो, ये सब अमीर खुसरो की देन है। न जाने कितने राग, कितने तराने, ये सब अमीर खुसरो ने बनाए हैं, जो आप आज भी हर दिन गाते हो, बस आपको पता नहीं है। जरूरी है ना इनके बारे में जानना। एक बात बड़ी पसंद है मुझे इनके बारे में, इन्हें पहेलियां लिखने का बड़ा शौक था। पहेलियां समझते हो? वो स्कूलों की किताबों में बूझो तो जाने किया करते थे। बूझोगे? बुझवाओ, इतना सब तो बहुत मुश्किल होगा। वेयर riddles, you guys solve a riddle for us, all right? I'll translate it for you guys, the riddle part, all right? एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, थाल इधर उधर फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। बताओ क्या? आसमान, हाँ, experience talks. Can somebody? A plate full of pearls inverted on our heads. It roams around here and there, but no pearl falls from it.